السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة قبة الإسلام، دار الإيمان، أرض الهجرة، مثوى الحلال والحرام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشفع من أمتي أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل طائف۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على لاوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی جمعہ سے پہلے والی جمعہ میں حرمین شریفین کے فضائل سے بات کا آغاز کیا تھا۔ اگرچہ سن ہجری 1442 کے اس سال عمومی حج کی شکل اطراف عالم کے چپے چپے اور کونے کونے سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کم از کم سینہ بسینہ جو فضائل اور امت مسلمہ کا ایک زبردست سرمایہ حرمین شریفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو کہیں اپنی تاریخ اور اسلام کے عظیم شاہکار سے امت میں غفلت پیدا نہ ہو جائے، اس لیے یاد دہانی کے لیے اس پر اگلی جمعہ سے پہلے حرمین شریفین کے فضائل سے بات کا آغاز کیا تھا، جس میں حرم مکہ کے فضائل ذکر کر دیے تھے۔ آج زیادہ طور پر روایتیں میں نے حرم مدینہ کے فضائل کے سلسلے میں ذکر کی ہے۔ اسلام سے پہلے اس مقدس شہر کا نام مکہ مکرمہ سے 260 میل کے فاصلے پر واقع بہت قدیم زمانے سے حجاز کی مردم شماری کے اعتبار سے آبادی کے تناسب سے دوسرے نمبر میں واقع قدیم زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، پھر اس کو بدل کر طابہ کر دیا گیا، پھر اس کو بدل کر طیبہ کر دیا گیا،
फिर इसको बदलकर अल-मदीनतुल मुनव्वरा कर दिया गया। अब हमेशा के लिए इस मुकद्दस शहर का नाम अल-मदीनतुल मुनव्वरा हो गया, जिसको आज भी हम अल-मदीनतुल मुनव्वरा के नाम से याद करते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा का कदीम तारीखी नाम यसरिब, इस मुकद्दस शहर की बहुत बड़ी फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदफन यानी आपके दफन की जगह इस मुकद्दस शहर में है। ठीक इसी तरह मदीना मुनव्वरा की एक फजीलत ये भी है कि ये मुसलमानों का दारुल हिजरत है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में सताए गए, परेशान किए गए, तो अल्लाह के हुक्म से आपने जो हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा की तरफ फरमाई। इस वजह से मदीना मुनव्वरा को दारुल हिजरा भी कहा जाता है। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना इब्राहीम खलीलुका व नबियुका व अना मुहम्मदुन अब्दुका व नबियुका व इन्नका हर्रमत मक्कता अला लिसान इब्राहीम व इन्नी उहर्रिमु मा बैना लाबतैहा। ऐ अल्लाह, इब्राहीम आपके खलील हैं, इब्राहीम आपके नबी हैं, और आपने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबानी मक्के को हरम करार दिया, और उसकी तफसीलात पहले जिक्र की जा चुकी। जब हजरत इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की तामीर से फारिग हो गए तो अल्लाह ने फरमाया, अद्दिन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। हजरत इब्राहीम सबसे ऊंचे पहाड़ पर चले गए, चढ़ गए और ऐलान किया, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम बना बैतन व फरद अलैकुमुल हज्ज फहज्जु। इसी की तरफ इशारा फरमाया आका ने, ऐ अल्लाह, आपने मक्के को हरम करार दिया, इब्राहीम की जुबानी उसका ऐलान करवाया, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने को हरम करार देता हूं, और मदीने का हरम दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह है। वो कौन से दो पहाड़ हैं? जबल ऐर से लेकर जबल सौर तक, ये मदीना मुनव्वरा का हरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मदीनतु कुब्बतुल इस्लाम, मदीना इस्लाम का कुब्बा है, दारुल ईमान, ईमान का घर है, अर्दुल हिजरा, हिजरत की जगह है, मस्वल हलाल वल हराम, हलाल और हराम को ठिकाना देने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मन सबर अला लावाइहा व शिद्दतिहा कुन्तु लहु शहीदन व शफीअन यौमल क़यामह। जो मदीना की सख्तियों पर सब्र करेगा और मदीना की तकलीफों को बर्दाश्त करता रहेगा, कल क़यामत के दिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके हक में सिफारिश करूंगा और उसके हक में गवाह भी साबित होंगे। जो मदीना की सख्तियों को बर्दाश्त कर ले, आका उसके हक में सिफारिशी भी होंगे और आका उसके हक में कल क़यामत के दिन गवाही भी देंगे। आका ने फरमाया, अना अव्वलु अशफअ मिन उम्मती अहलुल मदीना, क़यामत के दिन सबसे पहले मदीने वालों के लिए मेरी उम्मत में से मैं सिफारिश करूंगा, फिर मक्का वालों के लिए सिफारिश करूंगा, फिर ताइफ वालों के लिए सिफारिश करूंगा। आका ने फरमाया, मेरी उम्मत में से क़यामत के दिन सबसे पहले मैं सिफारिश मदीना वालों के लिए करूंगा, फिर मक्का वालों के लिए करूंगा, फिर ताइफ वालों के लिए। आका ने फरमाया, सबसे पहले मुझे जमीन हटेगी, मुझसे जमीन शक होगी यानी हटेगी, मैं निकलूंगा बास बादल मौत के दिन। फिर अबू बकर से जमीन हटेगी, वो निकलेंगे। फिर उमर से, अबू बकर को दाहिनी तरफ ले लूंगा, उमर को बाईं तरफ ले लूंगा, और हम तीनों जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाएंगे। बकी वालों को साथ लेकर हम मक्का वालों का इंतजार करेंगे।
وہ کون مکہ والے جو جنت المعلا کے مدفون ہیں؟ آقا نے یہاں بھی یہی ترتیب بیان فرمائی کہ سب سے پہلے مجھ سے زمین ہٹے گی اور میں نکلوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر مکی والے، اور پھر اس کے بعد مکہ والوں کا انتظار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ والے جو پسماندہ تھے وہ آقا کے استقبال میں مدینہ کے باہر تشریف لے گئے۔ عادت شریفہ یہی تھی، جب آقا کہیں سفر کے لیے جاتے تھے تو لوگ رخصت کرنے جاتے تھے، اور جب آقا مدینے میں تشریف لے آتے تھے تو مدینہ والے استقبال میں جاتے تھے آنے کے دن۔ تبوک کا موقع تھا، بہت سختیوں میں یہ جنگ ہوا تھا، اور آقا نے اس کے لیے اسلام میں سب سے پہلا عمومی چندہ مانگا تھا۔ تو واپسی کا دن تھا، حضرات صحابہ کرام جو پسماندہ تھے وہ استقبال میں تشریف لے گئے۔ آقا کے ہمراہی اور مدینہ سے استقبال میں آنے والے جب دونوں جماعتیں راستے میں ملی تو ریگستان کا سفر ہو تو غبار اڑتا ہے، تو کچھ غبار اڑا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی جو تھے، یعنی تبوک میں آپ کے ساتھ جو شامل ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے کپڑا لیا اور کپڑا لے کر اپنے ناک پر اور اپنے منہ کو ڈھانپ دیا، جیسے ماسک لگاتے ہیں، اپنے ناک پر ماسک لگا لیا اور اپنے چہرے پر کپڑا رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم خدا تعالیٰ کی، مدینہ کی خاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور آقا نے فرمایا، جذام اور برس جیسی خطرناک بیماری سے شفا ہے۔ جذام کا معنی رکت پت اور برس کا معنی کوڑ سے، اور رکت پت یہ انسانی آبادی میں انتہائی خطرناک گھناؤنی مرض ہے۔ کینسر کا مرض اپنی جگہ پر، لقوا اپنی جگہ پر، لیکن برس اور جذام یعنی رکت پت اور جذام یعنی برس کوڑ ہر وقت انسان کے جسم سے بدبو نکلتی رہتی ہے۔ اور رکت پت میں انگلیوں کے سیروں اور پوروں سے پیپ نکلتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، پھر اس سے جراثیم نکلتے ہیں، انسان کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، انتہائی انسانی آبادی کی خطرناک دو بیماریاں جذام اور برس، ان دو مہلک بیماریوں میں بھی شفا خاک مدینہ میں ہے۔ لیکن خاک مدینہ کا وہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نام سے آج جو خاک بک رہی ہے، البتہ نسبت مدینے کی طرف ہے، اس لیے ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جزئیہ تھا جس کا تعلق اس مقام مقدس کے ساتھ تھا، جس کے بابت آقا نے فرمایا، جب ہمراہیوں نے ماسک لگانا شروع کر دیا اور چہرے پر کپڑا ڈال دیا، اس غبار کو اپنے اندر نہ لینا پڑے اور وہ غبار اندر داخل نہ ہو جائے، تو آقا نے اصلاح فرمائی، قسم خدا تعالیٰ کی، مدینہ کی خاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ آقا نے فرمایا، من وجد ساعة ان يموت بالمدینہ فلیمت فإنی اشافع بمن يموت بالمدینہ، جو مدینہ میں مر سکتا ہے مدینہ میں مرے، یعنی جس کی موت مدینہ میں آئی، مبارک ہے وہ انسان، مبارک موت ہے، اچھی موت ہے، جو مدینہ میں جس کی موت آ جائے مدینہ میں مرے۔ اس لیے کہ میں مدینہ والوں کے لیے سفارش کروں گا، من وجد ساعة ان يموت بالمدینہ فلیمت فإنی اشافع بمن يموت بالمدینہ۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ مجھے مدینے کی موت نصیب فرما۔ فاروق اعظم کی دعا یہ تھی، اے اللہ شہادت کی موت مروں اور مدینے میں مروں۔ حالانکہ مدینہ دارالاسلام بن چکا، اب قیامت تک کبھی دارالکفر نہیں بنے گا، دارالکفر ہو
दारुल हर्ब हो, वहां जंग होती है। मदीना में तो जंग का कोई सवाल ही नहीं। अला अनकाबिल मदीनती मलाइका ला यदखुलुहा दज्जाल वला ताउन। मदीना के गर्द नवाह में फरिश्ते पहरेदार है, फरिश्ते बॉडीगार्ड है। मदीना की बातिनी निजाम भी और मदीना का दाखिली निजाम भी बड़ा जबरदस्त है। अला अनकाबिल मदीनती मलाइका, यहां फरिश्तों के पहरे हैं। न वहां दज्जाल दाखिल हो सकेगा, न वहां ताउन दाखिल हो सकेगा। फिर सवाल पैदा होता है कि मदीना मुनव्वरा में अगर कोरोना वायरस को ताउन कह दिया गया तो फिर मदीना बंद क्यों कर दिया गया, जबकि आका तो ये फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में ताउन दाखिल नहीं हो सकता है। सरसरी बहस इसकी यही है। हमारा कमाल ईमान और कमाल एतकाद और कमाल एतकाद तो यही है जो आका ने फरमाया, न दज्जाल दाखिल हो सकेगा न ताउन दाखिल हो सकेगा। अल्फाज रिवायत ये है, अला अनकाबिल मदीनती मलाइका ला यदखुलुहा, दखल यदखुलु दाखिल होना मुजारे में दवाम और इस्तेमरान का तर्जमा होता है। न दाखिल होता है न दाखिल होगा ताउन और न तो दज्जाल दाखिल होगा। तो फिर मदीना में मास्क का क्या मसला, फिर मस्जिद नबवी की बंदिश का क्या मसला, जबकि आका ने यह फरमा दिया। समझने की बात है, एतकाद और हक्कानियत जो कुलूब में है वो तो यही है। अलबत्ता अमल अगर उसके खिलाफ है तो वो उन हुक्काम का और इंतजाम का मसला है। लेकिन कमाल एतकाद और कमाल हक्कानियत हर मोमिन के अकीदे के साथ जो चीज ताल्लुक रखती है वो अकीदे के साथ यही चीज वाबस्ता हो जाएगी कि यहां दाखिल नहीं हो सकता। अगर कमाल एतकाद और आला दर्जे का यकीन उसको हासिल है तो उसके लिए तो मसला यही है। अलबत्ता जो हालात से मुतासिर है या वक्ती सियासत का शिकार है और वो कोई ऐसी मसलहत पैदा कर दे और कोई हुक्म नाफिज कर दे इस सिलसिले का, उस रिवायत से भी साबित होता है कि मदीना मुनव्वरा की जब गर्द गुबार में खुदा ने शिफा रखी है तो वायरस का कोई मसला यहां होता ही नहीं है। लेकिन वह एतकाद और वह हक्कानियत इसका ताल्लुक कल्ब के साथ है और जाहिरी सियासत के पेश नजर कोई मुतासिर होकर अगर कोई हुक्मनामा जारी कर दे तो वो अलग मसला है। ये तो मुख्तसर तौर पर इस मुकद्दस शहर के चंद फजाइल आप हजरात की खिदमत में मैंने पेश कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां आका ने जब मक्का से हिजरत की तो आप पहले कुबा नामी बस्ती में तशरीफ रखे थे, चंद दिन यहां कयाम किया और यहां आपने एक मस्जिद की बुनियाद डाली जिसका बयान कुरान में है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और जिसका बयान हदीसों में है, मन ततहहर मिन बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही रकाअतैन कान कअज्रिल उमरा। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवीर पर रखी गई, ऐ नबी बहुत मुनासिब है कि आप उसमें नमाज कायम करें। और वो मस्जिद कुबा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने घर से वुजू बनाकर जहां उसका कयाम है मदीने में, वहां से वुजू बनाकर मस्जिद कुबा चला जावे, 3 रियाल में बस लगती है मस्जिद नबवी से कुबा जाने के लिए। हर मिनट पर बस मस्जिद नबवी से चलती रहती है। सिर्फ इस नीयत से गया कि मुझे उम्र की फजीलत हासिल करनी है तो वहां पहुंच जाएगा 3 रियाल में, खाली 3 रियाल बस का किराया है। फिर वहां मस्जिद कुबा जाकर 2 रकात नमाज पढ़कर वापस आ गया, उम्रा हो गया उसका। मदीने में उम्रा नहीं होता है, उम्रे की जगह तो मक्का है जहां तवाफ किया जाता है, जहां सई की जाती है, जहां हलक किया जाता है। लेकिन ये 2 रकात उस उम्रे के बराबर सवाब में
करार दे दिया गया कि जो आदमी सिर्फ इतना मामूली खर्च करे या पैदल चला जाए और या अमल करके वापस आ जाए, उसको उम्रे का सवाब मिलता है। फिर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और आपने इस्लाम की मुकद्दस तरीन अपने दस्त मुबारक से जिस मस्जिद की बुनियाद रखी वह मस्जिद नबवी अला साहिबिहा अल्फ सलातिन व सलाम, यानी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की बुनियाद आका ने रखी, जिसके बाबत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां की एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है। आम सही रिवायतों में मशहूर यही आया, इब्ने माजा की रिवायत में है मस्जिद नबवी की एक नमाज 50,000 नमाज के बराबर है। आम अहादीस की मशहूर और मुतवातिर रिवायतों में 1000 नमाज का तज़किरा है और इब्ने माजा की रिवायत में 50,000 नमाज का सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा जाने के बाद मदीना मुनव्वरा ही में क़याम पजीर रहे। यही से आपने सन हिजरी 2 में बदर किया, यही से आपने सन हिजरी 3 में उहुद किया, यही से सन हिजरी 4 में गज़वाए अहज़ाब हुआ, बनो क़ुरैज़ा हुआ, बनुल मुस्तलिक हुआ, फतह खैबर हुआ, ताइफ हुआ, हुनैन हुआ, फतह मक्का हुआ और फिर वापस आप तशरीफ ले आए और आपका मदफन भी मदीना मुनव्वरा ही में। आका ने जिस वक्त मस्जिद नबवी तामीर फरमाई, इसकी मशरिक की जानिब में 2 कमरे तामीर करवाए। अज़वाज मुताहरात में उस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा थी और सैयदा सौदा थी, बाकी सब अज़वाज बाद में हुई। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तक हयात रही तब तक आका ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। खदीजतुल कुबरा ही के बतन से आका को सारी औलाद नसीब हुई, अब्दुल्ला, कासिम और मारिया किब्तिया से इब्राहिम, और खदीजा के बतन से ज़ैनब, रुकैया, उम कुलसूम और फातिमा, 4 बेटियां 2 बेटे खदीजा ही के बतन से। अलबत्ता मारिया किब्तिया से इब्राहिम हुए। तीनों औलाद नबीना बचपन में राहीउल बका हो गए। अलबत्ता खदीजा, ज़ैनब, रुकैया और उम कुलसूम और फातिमा बितरतीब उनके हालात बनातुन नबी में हम जिक्र कर चुके हैं। ये आपकी 4 बेटियां, ये सब खदीजा के बतन से 40 साल के उम्र में आका की ज़ौजियत में आई थी। 63 साल के उम्र के अंदर खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। 25 साल ज़ौजियत में रही और ये शर्फ खदीजा को हासिल हुआ। फिर आपने निकाह फरमाया आयशा से और सौदा से, और दोनों के कमरे मस्जिद नबवी में आका ने मशरिक की जानिब के अंदर बना दिए। शुरू में ये 2 ही कमरे थे, कच्ची ईंटों के थे, फिर बाद में अज़वाज मुताहरात के कमरे बढ़ा दिए गए। सहाबाए किराम जो मदीने में आबाद थे, हर एक के घर के दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुलते थे। फिर आका ने अबू बकर के दरवाजे के अलावा तमाम के दरवाजे बंद करा दिए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मस्जिद के अंदर खास तौर पर 3 चीजें हैं। एक, मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ, एक मेहराब नबी और एक उस्तवानात। मस्जिद नबवी में 3 चीजें समझने के काबिल हैं। 3 चीजों में से एक को मिंबर कहते हैं, दूसरे को मेहराब कहते हैं और तीसरे को उस्तवानात कहते हैं। मिंबर 1 है, मेहराब 3 है और उस्तवानात 7 है। उस्तवाना का बहुवचन है और उस्तवाना का माना पिल्लर, सुतून जिसको कहते हैं। उस्तवानाए सबा उसकी मशहूर तारीख भी है और उसके मशहूर फजाइल भी है। हम मिंबर से चले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह को रौज़तुल जन्नह कहते हैं। आज ये 22 मीटर का एरिया है, तकरीबन 26 मीटर था। सुतूनों का हिस्सा अगर
हिसाब से निकाल दिया जाए, जिसमें पिल्लोर खड़ा है, तो 22 रह जाते हैं। कि 22 मीटर में वाक़े जमीन को आका फरमाते हैं मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, मेरा घर यानी हुजराए आयशा, यहां मिंबई की से मुराद हुजराए आयशा, और अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मेरा मिंबर इसके दरमियान की जगह को जो माजाना तक जाता है और इधर उस्तवानाए आयशा तक जाता है और इधर मिंबर तक का हिस्सा जाता है, इसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। क्या मतलब? उलमा की एक जमात का कहना यह है रहमत, सआदत, फयूज और नवार और बरक़ात जो जन्नत में अल्लाह ताला के हर वक्त मयसर है वो इस जगह में भी है। एक कौल ये है अनवार, सआदतें, रहमतें और बरकतें जिससे जन्नती लुत्फ़ अंदाज होगा। अगर दुनिया में इन सिफात के हुसूल की कोई जगह है तो रियाजुल जन्ना है, यानी यहां भी सआदत नसीब होती है, ये रहमतों की जगह है, ये अल्लाह की तरफ से नेक बख्ती की जगह है, या अनवार और अल्लाह ताला के रहम करम के लुटने की जगह। ये तमाम मुहद्दिसीन की मुत्तफ़क़ा तशरीह है। दूसरा मतलब बेआईनी ही ये जगह अगरचे दुनिया की है लेकिन जन्नत में उठा करके शामिल कर दी जाएगी। तीसरा कौल ये है हकीकत में ये जगह जन्नत से आई है लेकिन दुनिया में उसको कर दिया गया है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए हैं। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, इससे ये कहा जाता है कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो मदीना मुनव्वरा में रियाज़ुल जन्नह है। आका ने फरमाया मिंबरी अला हौजी, यहां मिंबर शरीफ है, मेरा मिंबर मेरी हौज़े कौसर पर है। मिंबरी अला तुरअतिन मिन तुराइल जन्नह, मेरा मिंबर जन्नत की सीढ़ी पर खड़ा है। तीसरी रिवायत में फरमाया मेरा मिंबर शरीफ जन्नत के बागीचे के दरवाजे पर है। 3 रिवायतें मैंने जो सही थी वो पढ़ी। एक किताब है मुस्तकिल तौर पर रियाजुल जन्ना के नाम से लिखी गई है, पढ़ो। एक किताब मुस्तकिल लिखी गई है बक़ी उल गरक़त के नाम से, जिसमें जन्नतुल बकी की पूरी तारीख बयान की है। एक किताब मुस्तकिल है जिसमें रियाजुल जन्ना का मुख्तसर तारुफ किया है, पहले अरबी में थी फिर उसका ट्रांसलेशन उर्दू में हुआ, लेकिन सब मातबर और मुस्तनद अहादीस के खुलासे जिक्र किए गए हैं और अहादीस ही नकल की गई। तो उसमें लिखा है 3 बातें। मेरा मेंबर मेरी हौज़ पर है, मेरा मेंबर जन्नत की सीढ़ी पर है और मेरा मेंबर जन्नत के बागीचे के दरवाजे पर है। मेंबर शरीफ की एक हिस्ट्री है, ये मस्जिदों के मेंबर, क्या माना इस मेंबर का। आका जब मदीना तशरीफ ले गए, शुरू में थोड़े सहाबा थे अंसारे मदीना, जिनके नाम से मदीना मशहूर हुआ। अंसारे मदीना, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। रात दिन हम बोलते हैं हिजरत और नुसरत से दिन फैला है, लेकिन कसम खाने के दर्जे में नुसरत को समझना चाहिए कि नुसरत किसे कहते हैं, हिजरत किसे कहते हैं। खैर, ये अंसारे मदीना इस्लाम के अव्वलीन हैं जिन्होंने भारी कुर्बानियां पेश की। तो जब आका मदीने में थे, अब सहाबाए किराम थोड़े थे, फिर मदीना में वुफूद आने लगे। आका के पास जमातें बन बन करके आती थी। आका नीचे खड़े रहकर खुतबा देते थे, जमीन पर खड़े रहकर खुतबा देते थे और किबला की तरफ में एक खजूर का तना था, आप इससे सहारा लगा देते थे खुतबे में, बाकी नीचे खड़े रहकर खुतबा देते थे। मिंबर को समझो, नीचे खड़े रहकर खुतबा देते थे। लेकिन जब वुफूद आते गए, किसी का कद लंबा, किसी का कद छोटा, अगरचे आका कुदरती तौर पर जब चलते थे तो पूरे मजमे में सबसे ऊंचे मालूम होते थे। वह आपके कद के लंबे होने की वजह से नहीं, बल्कि मौजिजा था।
जब सहाबाए किराम के साथ अब गज़वात में तशरीफ ले जाते थे पैदल, तो कुदरती तौर पर सबसे नुमाया कद नजर आता था, तलाश नहीं करने पड़ते थे, नजर आ जाते थे। ये मस्जिद नबवी की बात है। नीचे जमीन पर खड़े रहकर खुतबा दिया जाता था, नीचे जमीन पर खड़े रह करके तालीम दी जाती थी। सहाबाए किराम जब वुफूद बहुत आने लगे तो कि अल्लाह के नबी, अब जरूरत इस बात की महसूस होती है कि आपके लिए चबूतरा बना दें, आप उस पर बैठ जाएं और आप जो है लोगों को तालीम दें और आप खुतबा दें। आका ने फरमाया ठीक है। तो मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले मिट्टी का जो है चबूतरा बनाया, मिट्टी का। पहला मेंबर जो बना था वो मिट्टी का था। इसी भट्टी के मेंबर पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते थे। जब सन हिजरी 7 हुआ, 7, तो हजरत तमीम दारी 7 साल निकल गए इसी पर। हजरत तमीम दारी ने कहा, अब आपकी उम्र है, अब आपका ज़ौफ और मशक्कत आप में है। देख रहे थे कि आका जब सबक दे रहे हैं और आका जब खुतबा दे रहे हैं, उम्र के साथ आदमी में तगय्युर पैदा होता है, कमजोरी का। तो ज़ौफ और कमजोरी का एहसास था और साहब अल्लाह के नबी के बड़े आशिक थे। तो तमीम दारी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, आपकी उम्र के लिहाज से आप में ज़ौफ और कमजोरी पैदा हो रही है, हम मुनासिब समझते हैं कि आपके लिए इस मिट्टी के चबूतरे को मेंबर की शक्ल दे दी जाए, अगर आप इजाजत दें तो हम मेंबर बना दें। आका ने फरमाया ठीक है, मेंबर बना दिया जाए। 1 मीटर ऊंचा था, आधा मीटर चौड़ा था और 3 पगथिये थे। तीसरे में बैठक थी, बाकी 2 चढ़ने के थे। ये पहला मेंबर बना सन हिजरी 7 में। सहल इब्न साद साइदी और एक सहाबिया खातून का एक गुलाम था मैमून। मस्जिद नबवी का पहला मेंबर लकड़ी का 2 आदमी ने बनाया, सहल इब्न साद साइदी और एक सहाबिया खातून का एक गुलाम, बहुत अच्छा सुथार था, बढ़ई सुथार था जो लकड़ी से काम करता था। तो दोनों ने मिलकर मस्जिद नबवी के अंदर सन हिजरी 7 में मेंबर बना करके आका को दे दिए। आका इसी ऊपर वाली मजलिस में बैठते थे जो आधा मीटर चौड़ा था और जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर 3 दर्जे थे। यहां तक कि आप रहीउल बका हो गए, यानी आखिरी हाल तक यही मेंबर रहा। सैयदना फारूक अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया। अब अल्लाह के नबी तीसरे पर बैठते थे। सिद्दीक अकबर ने नबी की बैठक की जगह पसंद किया नहीं बैठना, तो 1 कदम नीचे उतर गए, 1 दर्जा। 2.5 साल काम किया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक आका सन हिजरी 11 में तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक सन हिजरी 13 में तशरीफ ले गए और आका के पहलू के अंदर मदफून हुई। अब आया सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत। तो फारूक आजम ने अबू बकर की जगह बैठना पसंद नहीं किया, जैसे अल्लाह के नबी की जगह सिद्दीक ने बैठना पसंद नहीं किया। अब फारूक आजम 1 दर्जा और नीचे उतर गए। 10 साल तक यही सिलसिला चला। अब आ गया सन हिजरी 23, मेंबर वही है जो सन हिजरी 7 में बना था। सन हिजरी 23 तक चला। जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद नबवी के मेहराब में फजर की नमाज में शहादत हुई, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुई। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने 6 महीने तक फारूक आजम की जगह पर ही मस्जिद नबवी में खुतबा दिया। लेकिन इसके बाद सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने वो जगह छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर खुतबा देना शुरू किया और यही सिलसिला चलता रहा। सैयदना अमीर मुआविया का दौर खिलाफत था। मरवान इब्न हकम ने इसी 3 के साथ और 6 दर्जे बनाकर
9 सीढ़ी कर दी और 9 का मेंबर बन गया मस्जिद नबवी में। सन हिजरी 121 आया, 161 तो अब्बासी दौर आया, तो उसने देखा कि अब्दुल मलिक मरवान इब्न हकम ने यह अच्छा नहीं किया, तो इसने काम यह किया कि वापस 6 के 3 कर दिए। ये दौर है इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा का। इमाम मालिक ने समझाया सन हिजरी 161 में इस अब्बासी बादशाह को कि ये मुनासिब नहीं है, इसकी कील वगैरह कमजोर हो जाएगी, लकड़ी का काम है, इसको उसकी हालत पर छोड़ दो। इसकी हालत पर छोड़ दिए। अब आया सन हिजरी 654। सन हिजरी 654 के अंदर मस्जिद नबवी में एक कयामत खेज आग लगी थी और सब जल गया था। ये भी जल करके खाकस्तर हो गया। तो उस वक्त सन हिजरी 656 में, 54 से 56 तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल के बाद 654 में एक यमनी बादशाह ने संदल का मेंबर बनाया। फिर उसके बाद बनते रहे, जिसकी तारीख अपनी जगह पर, लेकिन सन हिजरी 998 आया, 1000 कम 2, सन हिजरी 998। उसके बाद तुर्की उस्मानी बादशाह मुराद ने सन हिजरी 998 में एक मेंबर बनाया, जिसमें 11 सीढ़ियां रखी, 3 पर दरवाजा और 9 ऊपर, और ऊपर गुंबद, और चारों तरफ काम किए, और इसमें सोने का पानी और चांदी के पानी से इसको मुरस्सा किया। 444 साल हो गए, आज तक तुर्की उस्मानी मुराद का बनाया हुआ, उस बादशाह का बनाया हुआ मेंबर आज तक मस्जिद नबवी में मौजूद है और इस्लाम के अजीम शाहकार हैं। और पूरी कायनात मिल करके उसका दीदा ज़ेब और उसका हुस्न जमाल और उसकी खूबसूरती और उस जैसी शक्ल नहीं बन सकी। 444 बरस से जिस इस्लाम के अदीम शिआर की हिफाजत मस्जिद नबवी कर रही है, मुसलमानों, उसको देख करके हमें कितनी खुशी होती है। ये हिस्ट्री है, इसका जानना भी जरूरी है। आज यूं करके मोबाइल की चीज ये करते हैं या कंप्यूटर यूं करते तो पूरा डेटा निकालते हैं। ये डेटा है मेंबर का, जिसको हम देखते हैं, ये सीना बसीना उम्मत में महफूज है और मैंने उसकी हिफाजत की कड़ी मदीने से हमारी नूर मस्जिद में कायम कर दी। सुबह से किताब देखता चला रहा, आगे और मदीना के फजाइल में जिक्र करता था, लेकिन आज एक ऐसी किताब पर मेरी निगाह पड़ गई जो तीसरे साल में मैंने सफर के दौरान खरीदी थी। इसका मुताला तो करता रहता था, लेकिन मैंने सोचा कि और तफसील के साथ इसको जिक्र कर दे। 444 बरस, 998 हिजरी, 1442 ओछा 998 करो, 444 साल से इस्लाम के इस अजीम शाहकार की जो हिफाजत हो रही है, इसका नाम मेंबर है। ये कोई मामूली चीज नहीं। और आका ने फरमाया, मेरे मेंबर पर बैठकर जो कोई झूठी बात करे वो जहन्नमी है। आका ने फरमाया, मेरे मेंबर पर बैठकर जो कोई झूठी बात करे वो जहन्नमी है। ये मेंबर की हैसियत इस्लाम में है। अब पता चला मस्जिदों में क्यों मेंबर बनाए जाते हैं। अभी तो हम मेंबर पर हैं। फिर मेहराब, अब मस्जिद नबी में 3 मेहराब आज भी है। आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहां से बात का आगाज करेंगे। फिर उस्तवानात की बहस आएगी। फिर मदीने का मशहूर तरीन कब्रिस्तान जो बकीउल गरकत के नाम से, जिसमें 70,000 बास बादल मौत के दिन ऐसे लोग खड़े होंगे कि 14वीं रात के चांद की तरह उनके चेहरे चमकते होंगे और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वो उस बकीए गरकत का खासा है, दुनिया में किसी और कब्रिस्तान का ये खासा नहीं, ये जन्नतुल बकी का खासा है। तो मैंने सोचा कि हद नहीं हो रहा है, तो
तो 2-3 साल से तो ये मज़ामीन भी चले गए। कितना लुत्फ आता है इन मुक़द्दस मकामात और इस्लाम के अदीम शाहकार के तज़किरे से। इसीलिए इसका रिवाज दो, तालीम के हलकों में भी इसको बयान करो। शायद कोई मस्जिद ऐसी होगी जिसमें फ़ज़ाइल हज की तालीम होती होगी। चूंकि फ़ज़ाइल हज तो अब 3 साल से हज नहीं हो रहा है, तो फ़ज़ाइल हज की तालीम भी गई। तो धीरे धीरे उम्मत क्या करेगी? अपने शायर से, ये भी एक दज्जाली फितना है, ये भी एक दज्जाली तागुती फितना है। उम्मत अपने शायर से एकदम नावाकिफ हो जाए, अजमत का मसला ही नहीं रहेगा। दज्जाल इस तरह पूरी कायनात के अंदर शाये हो जाएगा। इसलिए जरूरत है इस बात की, कुरानी तालीम का रिवाज दिया जाए, इल्म पढ़ाया जाए। अपनी वो औलाद जो तालीम में थी और दूर हो गई, वापस इनको तालीम से मुंसलिक किया जाए, मदारिस के साथ जोड़ कायम किया जाए, कुरान और सुन्नत का रिवाज आम किया जाए। इंसानियत बाकी रहेगी, वरना इंसानियत हैवानियत में बदल जाएगी और जानवर से बदतर जिंदगी इंसान गुजारेगा। और उन्हीं पर भी शिरारुल खल्क पर कयामत कायम होगी। अब शिरारुल खल्क कौन होंगे? जो चौराहे पर खड़े खड़े जीरा करेगा और अपनी सगी मां और बहन के साथ भी बदकारी करेगा। लिहाजा जरूरत है तालीम को आम करने की। जब तालीम आम होगी कुरान और सुन्नत की, हैवानियत इंसानियत में बदलेगी और इंसानी मुआशरा मदनी मुआशरा बनेगा। और जब मदनी मुआशरा बन गया तो फिर वो फयूज़ और बरकत और अनवारात जो आज भी मदीने में है, अल्लाह की कसम 444 साल जिस मिंबर को होते हो गुजर गए, उसको देखते हुए निगाह हटती नहीं। वो कितनी अजमत का शाहकार होगा। और सुल्तान मराद तुर्की बादशाह की वो क्या इखलास भरी अल्लाह की दी हुई नेमत माल से की हुई खिदमत आज मस्जिद नबी में चमक दमक रही है। और जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और उसको मुरस्सा करने के लिए अल्लाह ताला अपने फजल करम से फिर जल्द वो माहौल कायम कर दे कि मुसलमानों का बकसरत हरमैन शरीफैन का सफर शुरू हो जाए और पूरे आलम के चप्पे चप्पे कोने कोने से पहले से ज्यादा सफर की सहूलतें खुदावंद कुद्दूस आलम के बसने वाले चप्पे चप्पे कोने कोने के मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल से बार बार की हरमैन की हाजिरी की सआदत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको लुत्फ अंदोज और माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, 2-3 जरूरी गुजारिशात हैं। फिर हुकूमत हिंद पर अपनी अंदर की शरारतें और इस्लाम दुश्मनी इनके अमाल से जाहिर हो रही है। बूढ़े मुसलमानों को और औरतों को बेइज्जत करना, जलील करना, दाढ़ी काट डालना, मसाजिद पर हमले करना, इक्का दुक्का मुसलमानों पर डर और खौफ का माहौल पैदा करना, प्लानिंग के मुताबिक पुरानी शरारतें अभी कोरोना से गुजरे नहीं है और शुरू हो गया है। इन हालात में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। कुलूब की फेरने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ये इंसानी दरिंदे, ये वहशियाना हरकतें जो मुसलमानों के साथ करते हैं, एक तरफ दिनडक किसी एक बच्ची को बचाने के लिए चंदे करते हैं और हजारों मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। मसाजिद और शायर की बेहुरमतियों पर आमदा हैं, इनको गिराने की प्लानिंग हो रही है। मुतवज्जे हो जाओ, फैसला अल्लाह के हाथ में है। कुलूब का मालिक अल्लाह है, उसी एक अल्लाह को राजी करने की ज़रूरत है। मखलूक के साथ तो हमने बहुत मामले कर लिए, अल्लाह के साथ मामला करें। मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। इनकी नापाक साजिशें और खबासतें और पॉलिसियों को समझकर जिम्मेदारों को इस पर मुतवज्जे होकर के बहुत ज़्यादा गहराइयों के साथ इन शरारतों के ऊपर निगाह रखनी है। दूसरी बात, वक्त मुसीबत का है। दाना ज़मीन में डाल दिया है कीमती, आसमान से खुदा ने बारिश का सिलसिला रोक दिया है। सदका करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह ताला से मांगना है।
روزانہ صدقہ کرے. استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ پڑھے. استغفار سے بارش آئے گی، صدقے سے رکی ہوئی بارش آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم سیبا نافعا. ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام. قربانی کا زمانہ قریب آ چکا ہے. حصے والی قربانیوں میں سوراشٹر کے باہر ہم 1300 روپے رکھے ہیں، یہاں مقام پر 2700 روپے رکھے ہیں ایک حصے کے. تو ذمہ داروں سے رابطہ قائم کر کے حصے والی قربانیاں لکھوا سکتے ہیں، چونکہ پہلے سے ہی انتظامات کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک کے لیے موقع پر سہولتیں ہو جائے. یہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، دینی اداروں کو مضبوط سے مضبوط کرنے کا ہے، اپنی اولاد کو دینی تعلیم میں بے نفس سے نفیس شامل کر کے، یعنی ان کی دینی تعلیم کی فکریں کر کے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار کا ایک مدرسہ ہے، چندے کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں. زکوٰۃ فی اللہ صدقہ سے مدد کرتے جائیں. انکلیشور کے کچھ پریشان حال بھائی ہیں، ان کی بھی مدد کریں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد. یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وہاب یا عزیز یا اللہ. ہم تمام کائنات میں بسنے والے انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما. اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما، انوار اور برکات سے مالا مال فرما، شر و فساد سے حفاظت فرما. اس ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، بے روزگاری کو ختم فرما. اے اللہ وقت بہت لمبا ہو چکا ہے. اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بہت 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 روزی دینا یہ تیرا نام ہے. تو نے فرمایا بے شک اللہ بہت 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 روزی دینے والا ہے اور مضبوط طاقت کا مالک ہے. اے اللہ ہم ایرے گہرے سے روزی نہیں مانگ سکتے ہیں، کوئی دیتا ہی نہیں ہے. وہ دھکے مار کر کے نکال دیتا ہے، وہ ذلیل کرتا ہے. اور اب تیرے ہی پاس روزی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری تو نے لی ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے. ہم نے اسباب میں روزی سمجھی تھی، تو نے سارے اسباب پر روک کر دیا تاکہ تیری طرف نگاہ ہو جائے. یہ ہمارا جرم عظیم تھا کہ فائبر میں روزی ہے، بوٹ میں روزی ہے، ناریل میں روزی ہے، مچھلی میں روزی ہے. تو نے دھوکہ کھول دیا. اللہ تیرا بڑا احسان ہے، موت سے پہلے تو نے دھوکہ کھول دیا. لیکن ہم انسان ہے، ہم بشر ہیں، ہمارے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں. اے میرے پروردگار یہ اسباب تھے، یہ رزاق نہیں تھے، یہ اسباب تھے. مسبب الاسباب تیری ذات ہے، تو غیر سے انتظام کر دے. اللہ غیر سے انتظام کر دے. تو کبھی بندے کو ستاتا نہیں ہے. ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے، اللہ تمہیں ستا کر کیا کرے. اگر تم ایمان لاؤ قدر کرو تو اللہ تعالیٰ کبھی ستائے گا نہیں. اے اللہ تو کریم ہے، ارحم الراحمین ہے. ہمارے لیے روزیوں کے دروازے کھول دے. تیرے خزانے میں ہے، تیرے پاس ہے. آج تک تو نے ہی چلایا ہے اور صبح قیامت تک تیری ہی ذات چلائے گی. اب برکتوں کے دروازے کھول دے، اب بے روزگاری کو ختم فرما دے اور رزق کے حلال کے دہانے کھول دے. اے میرے پروردگار ہمارے محمد حسین بھائی بیمار ہے، سلیم بھائی بیمار ہے جن کے آپریشن ہوئے ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اقبال بھائی بیمار ہے، دعا کے لیے کہا ہے. اور ہمارے حنیف بھائی ڈیڈی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. اور جتنے بھی مرحومین اب تک چلے گئے سب کی کربت کربت مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ یہ مسجد کے ساتھی ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، گناؤنی مرض لاحق ہو چکا اور آپریشن ہوا ہے.
اے اللہ آپ ہی کی ذات شفا عطا فرمانے والے ہے، تو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اس بستی سے بہت بڑی تعداد میں اور عالم سے بہت بڑی تعداد تیری جوار رحمت میں چلی گئی۔ اے اللہ جن کے رشتے دار ابھی تک صحت میں نہیں ہے، کچھ بیٹیاں چلی گئی جن کے شوہر صحت میں نہیں ہے، کچھ مائیں چلی گئی جن کی اولادیں ابھی تھوک رہی ہے اور بہت پریشان ہے، تسلی کا سامان ابھی تک انہیں ہوا نہیں ہے، کچھ کی عقلوں کا اے اللہ معیار ختم ہو چکا ہے، وہ محبتوں کی دین یاد کرتی ہوئی اس جدائی کا صدمہ وہ سے نہیں سک رہے ہیں۔ رب الجلال والعزت تیرا فیصلہ قابل قبول ہے، اسی پر خبر ایمان ہے، لیکن یہ اچانک پٹاپٹ چلے گئے۔ اے اللہ قبروں کو نور سے بھر دے، روحوں کو لیکن میں داخل فرما دے، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے، رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ کو بس کرا، اللہ کو باغی تیرا، اللہ کو بس یہ بندہ پیا تیرے خزانے میں ہے، تیرا بھی نظام چلتا ہے، لوگ کیا ہمیں ڈرائیں دھمکائیں، اللہ خزانہ تو تیرا ہے، تو ہی مالک اور خالق ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہ تھا نہ کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ رب ذوالجلال والعزت تیرے ہی بھروسے پر بہت محفوظ دانہ گھروں میں سے اولاد سے زیادہ پال پوس کر کے اس کی حفاظت کرتے تھے، وہ زمین میں ڈال دیا، اے اللہ وہ اگا بھی دیا تو نے، اللہ اس کو آباد فرما دے، اس میں برکتیں پیدا فرما دے، کنووں کی سینچائیاں فرما دے، تیرے ہاتھ میں پانی کا نظام ہے، اعتدال والا برکت والا رحمت والی موسلادھار بارش عطا فرما دے، تو ہی سے مانگا ہے، تیری ہی ذات عطا فرماتی ہے، عطا فرما دے۔ اے اللہ روک کر رکھنے سے تیرا تو کوئی فائدہ نہیں، ہماری اصلاح مقصود ہے، تیری طرف ہمیں متوجہ تو کرنا چاہتا ہے، اے رب ذوالجلال والعزت ہم تمہیں بھول گئے، تو اپنی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اپنے فضل سے رحمت کی موسلادھار بارش عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، کھیتی کی لائن سے ہماری آزمائش نہ فرما، کنووں کی سینچائیاں فرما دے، حاضرین مجلس کی ہر جائز حاجت تمنا پوری فرما دے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی بھی شکل پیدا فرما دے، مساجد مدارس کی آبیاری فرما دے، دعوت کی کام کی حفاظت فرما لے، داخلی خارجی فتنے سے محفوظ فرما لے۔ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مبارک دن میں تجھ سے جو خیر مانگی ہے، جمعۃ المبارک میں آپ سے مانگتے ہیں، ایک مقبول گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، ہماری فیور میں وہ گھڑی کر کے مانگی ہوئی دعائیں حاضرین کی آمین کے صدقے میں اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔